ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते हरिः ओम्. That which we call the outer world is perfect. This which we call the inner world is perfect. Each one filled with divine consciousness. Perfect comes from perfect. Take perfect from perfect. The remainder is perfect. Divine consciousness is non-dual. Anything that emerges from the divine consciousness is whole, is complete, is Purna. May peace and peace and peace be everywhere. Om Shanti, Shanti, Shanti. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव Hey friends, welcome to the Purnamada series season 3. I am Irmala, and this series we have people who come and share their past life regression experiences and how they have healed themselves using this lovely modality. On the show we have my mentor Dr. Jain, who has transformed more than thousands of lives using her love, dedication and wisdom and this lovely therapy over a period of 20 years. In conversation with Dr. Jain, today we have Anil Sonavne from Jaipur. Anil would be sharing his experience about how he has transformed his life using this modality as well. Anil is an engineering student, has also done his business management. He has been associated with 3 Fortune 500 organizations as an HR professional. He runs his healing center from his home, and his expertise is in PLR, that is past life regression therapy, Reiki, and crystal healing. He has worked on more than 50 cases of physical, mental, and emotional illness. He's also a certified life coach, Vedic astrologer, and deals in precious gems. Welcome, Anil Sonavne, to this show. Now, over to Dr. Jain. Thank you, Irmala, my beautiful, and welcome, Anil. It's always a pleasure for me to meet all my students here and also to know how wonderfully they are progressing in their work. So, Anil, welcome, my dear. Thank you. And अभी इर्मिला ने बताया जैसे कि you are a engineering student, management student, worked in the corporate sector. अनिल, वहाँ से यहाँ तक की जर्नी कैसे हुई? मैम मेरे लिए भी एक मिस्ट्री जैसा ही है. I was a student of engineering in 2001. Then I done my studies in management and work for multinational companies. बट मेरे को हमेशा ये फील होता था दिस ऑल द थिंग्स जो मैं लाइफ में कर रहा हूँ ये दिस ऑल द थिंग्स आर वेरी लिमिटेड.
कुछ ऐसे चीज की मुझे तलाश थी विच इज एंडलेस। तो यही सब चीजों के चलते चलते ड्यूरिंग 2009 जब मैं पूना में था, आई सॉ योर शो राज पिछले जन्म का, एंड ऑल ऑफ सडन आई क्लिक, ये दिस इज द थिंग विच आई वांट टू डू इन माय लाइफ। सो व्हाटएवर आई एम डूइंग दैट इज जस्ट फॉर द मनी, सो लेट्स डू समथिंग। और फिर मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया हाउ आई कैन लर्न दिस ऑल साइंस, और इसको एक्सप्लोर कर सकता हूँ और यूज कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, बट कोई चैनल मुझे नहीं मिला। Then in Right. 2009 somewhere I got that information through Facebook somewhere that Dr. Newton was organizing a program, 2 days program at Pune. So I went there, attended the program. So that was the first time when I introduced with term PLR, past life regression. Right. So And Dr. K. Newton Yeah. is an amazing past life regression therapist. He's also one of my mentors. एंड हैदराबाद में उनका बहुत सुंदर सेंटर है, अभी उनका बहुत सुंदर फार्म भी है जहाँ पे बहुत सारा काम करते हैं। एंड आई एम ग्लैड अनिल के यू वेंट टू द राइट पर्सन टू अंडरस्टैंड अबाउट पास्ट लाइफ थेरेपी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। Yes. सो वहाँ से फिर तुम्हें क्या हुआ? तो वहाँ से that was a kind of milestone of my life, जहाँ से एक नई जर्नी स्टार्ट हुई, and from that date onward I started thinking कि कहीं पे मैं जाके I'll become a full-fledged therapist of past life regression and I'll leave this corporate world and I'll do something which is actually worth in life, जो सिर्फ पैसे के लिए नहीं होगा। and this is limitless world जहाँ पे जाके मैं लोगों का unlimited level तक लोगों का help कर सकता हूँ। Multiple kind of physical, mental, emotional issues are there with people. So वहाँ से मैंने start किया, then again I don't know what was in my destiny. एक बहुत लंबे पीरियड तक फिर कहीं पे मुझे कोई लर्निंग, कोई टीचिंग ट्रेनिंग नहीं मिली। स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम इंटरनेट समथिंग व्हिच वाज इन बिट्स एंड पीसेस, एंड फॉर्चुनेटली देन आई गॉट इन्फॉर्मेशन समहाउ दैट यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ थेरेपिस्ट प्रोग्राम एट मसूरी। ओके। सो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा एक्साइटिंग था। आई हैड टू रिक्वेस्ट अ लॉट टू माय बॉस टू गिव मी द लीव टू अटेंड अ प्रोग्राम फॉर अ वीक, और वहां पे फिर मैं आया और वहां पे आके सब कुछ मेरे लिए नया था। आई वाज क्वाइट एक्साइटेड and went through the entire program and I was quite happy। मतलब अभी मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वो सपने जैसा था पूरा 8 दिन, कि मुझे याद नहीं आता कि रियल में लाइफ में कभी इतना अच्छा हुआ है। तो मुझे लगता है वो एक सपना था which has changed my life, and I would say professionally कि मैं एक therapist हूँ, and I invite people to come to me whatever kind of issues are there in your life and let me try how we can help you out. Yeah, but Anil, from the corporate world to now, so you left your job, right? Yeah. Now that is a big step, Anil. जॉब छोड़ना, एक सिक्योर जॉब जहाँ पे आपको एंड ऑफ द मंथ सैलरी मिलती हो, वो जॉब छोड़ के आप एक हीलर बनना, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट बनना, जहाँ पे ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द मंथ सैलरी मिलती नहीं है। रियली मैम थोड़ा सा तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चैलेंजिंग है। आई ऑल्सो स्ट्रगल अ लॉट, क्योंकि मैं वहाँ पे सीनियर पोजीशन पे था। आई वाज हेडिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट in the recent organization which was again a Fortune 500 company from Boston. So एक हैंडसम सैलरी आती थी फर्स्ट को, बट स्टिल मुझे लगता था कि ये समथिंग इज मिसिंग इन लाइफ। सो आई डिसाइडेड दैट मेरा जो कुछ सेविंग है उसको लेके आई कंटिन्यू फॉर सर्टेन ईयर्स और मंथ्स, and I started working with people, and but even though ठीक है फाइनेंशियली थोड़ा चैलेंजिंग है, but I am happy and satisfied with my life कि मैं कुछ कर पा रहा हूँ किसी के लिए। But your wife and children, what about them? उनकी जो नीड्स है, उनकी जो डिजायर्स है, जो पहले शायद आप पूरी कर पाते थे, अब उसका क्या होता है? My wife is also a Reiki grandmaster. Wonderful. तो ये बहुत बड़ा फॉर्चुनेट है कि मेरा वाइफ भी ऐसी है, शी इज इन दिस वोकल साइंस, तो उसको भी अच्छा लगता है। तो हमारा हैंड इन हैंड काम करते हैं साथ में, बहुत अच्छा सा, शी इज आल्सो हैप्पी। Wonderful. So Irmala, you can see that more than material comfort and money, there are people in this world who are looking for personal happiness and personal growth. There are very few men, Ma, who would, put the family to stake and then do this. Yes, you're absolutely right. I mean, a lady doing it is okay because she has a backup, A man taking this decision is a little dicey, but very nice. But hats off, Anil. Hats off. Yes, Anil. Yes. कि तुमने अपनी happiness को, personal happiness को,
कॉम्प्रोमाइज नहीं किया. ये बहुत रेयर होता है अनिल कि कोई अपनी पर्सनल हैप्पी, बिकॉज यू आर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड चिल्ड्रन का एजुकेशन एंड ऑल दैट, एंड money plays such an important role for all this, right? But I'm so happy, and you are happy. I can see that. जब तुम बात कर रहे हो. वो जॉब करके भी मैम फायदा नहीं था, क्योंकि वहाँ ऑफिस में मैं हर किसी को पकड़ के बोलता था चलो तेरा PLR कर देता हूँ. I was taking salary from corporate and was doing something which was. That's so sweet, Anil. So then I'm sure क्योंकि तुम इतने interestingly सीखने के लिए मसूरी आए थे. I remember. I think it was 2018. Anil? Yes, 2018 का batch, yeah. So वहाँ आके did you have some experiences? Because definitely जो लोग आते हैं ट्रेनिंग के लिए पहले उनको अपने experiences बहुत important है होना. Right. So कुछ बताओ अपने experiences के बारे में. वहाँ पे जब मैं आया था तो मेरे भी दिमाग में ये वाली बातें थी. When I'll go there and मेरा कोई सेशन होगा, when I'll see myself as a king somewhere or fighting in army or bomb और ये सब चीजें, ये सब मैंने ना वो जो आपका शो चलता था वहाँ पे देखा था. तो वहाँ पे देख के बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे था कि मेरी भी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ होगा. बट वहाँ पे जाके जब मेरे सेशंस हुए तो मेरे सेशन में आके मुझे कहीं पे ऐसी कोई लाइफ मेरी नहीं दिखी जो कि जिसको मैं बोलूँ कि बड़ी स्टोरी है, फिर इस डेट में ये हुआ, इस डेट में ये हुआ. बट व्हाट आई सॉ एंड रियलाइज वाज मोर इम्पोर्टेंट देन सीइंग एनी लाइफ ड्रामा और एज एनी अदर लिविंग थिंग. तो एक मेरा सेशन हुआ जहाँ पे आई सॉ माई सेल्फ जस्ट एनर्जी. तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था जब वो मेरा जो थेरेपिस्ट था was continuously asking कि can you see your body, what you are, how you are feeling. तो मुझे बस एक ही फीलिंग आ रहा था कि I am there, but how is my body, I was not able to recognize. फिर थोड़ा सा सेशन आगे बढ़ा तो all of a sudden I saw myself a peacock. और वो पिकॉक जो था वो पिकॉक पूरे अर्थ का राउंड लगाता था और बहुत सारे ये प्लैनेट्स वहां पे दिख रहे हैं एंड यू आर मतलब आई वाज आउट फ्रॉम दिस प्लैनेट और एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पूरा राउंड लगा के आ रहा था और आई वाज एंजॉयिंग अ लॉट कि एक सेकंड में पूरे अर्थ का राउंड लगा के आता है एक पिकॉक और पूरे राउंड लगा रहा है, बहुत एंजॉय कर रहा है. दैट वाज काइंड ऑफ फन. बहुत अच्छा मुझे लगा और मुझे लगा कि ये मतलब कैन आई बी अ पिकॉक. फिर मुझे लगा नहीं, पता नहीं हो सकता क्या चीज है. फिर सेशन आगे बढ़ा तो देन आई सॉ माई सेल्फ एज अ बोट. एक छोटा सा जो बोट होती है गाँव की विदाउट एनी टेक्नोलॉजी, इसको हाथ से चलाते हैं. तो मुझे लगा एक बोट है जो नदी के इस साइड जाती है और इस साइड जाती है, वो लोगों को इस साइड छोड़ने और लाने का काम वो करती है. तो देन बहुत कॉन्शियसली मैंने देखने की कोशिश करी, एम आई अ गाय हु वाज ड्राइविंग दिस बोट. तो मैं वो नहीं था जो बोट चलाता है, तो मैं बोट ही था. तो मैं बहुत क्लियरली मैंने देखने की कोशिश करी तो आई वाज बोट. तो मुझे लगा ये भी कि मैंने फिर थर्ड टाइम मैंने देखा कि आई वाज स्टेइंग इन अ banyan tree. Hundreds of years I was staying in a tree only. बहुत बड़ा banyan tree है और उसके अंदर पर्पल कलर का एक लाइट है जो वहाँ पे रहता है. Then I discussed this in the program with friends and the batchmates. आपसे भी डिस्कशन हुए सारे. तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये मस्ट नहीं है कि हमेशा आप देखो आप पीछे की लाइफ में कोई इंसान हो या मेल हो, फीमेल हो, कोई एनिमल हो, ये जरूरी नहीं है. यू कैन बी अ कॉन्शियसनेस व्हिच कैन बी इन सम नॉन लिविंग थिंग्स आल्सो. तो जब मैंने ये बातें सुनी थी तो सुनने में बहुत मुश्किल है इसको एक्सेप्ट करना. अभी भी किसी डिस्कशन कभी होते हैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं तो उनको ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है कि अभी आप अगर कोई इंसान हो, हाउ यू कैन बी अ बोट. के बीच में भी कोई लाइफ होती है जहाँ पे यू डोंट हैव एनी बॉडी, यू आर जस्ट अ कॉन्शियसनेस एंड समवेयर इन मे बी एनीवेयर इन लिविंग और नॉन लिविंग थिंग. तो ये एक मेरा नया एक्सपीरियंस था और बहुत मतलब मैंने कभी पढ़ा सुना नहीं था. माई जस्ट लाइफ बिफोर दिस लाइफ. तो क्या हुआ, सेशन में करने आया था
तो मैं सोच के आया था, एक वन ऑफ द प्रॉब्लम वाज देयर इन माय फैमिली लाइफ व्हिच आई वांटेड टू एक्सप्लोर कि ये क्यों है ऐसा। प्रॉब्लम ये थी मेरी फैमिली में कि मेरी वाइफ को हमेशा लगता है कि ये एक्स्ट्रा केयरिंग करते हैं फैमिली की, इनको चिंता बहुत ज्यादा हुई, इज मोर fear about this all the things which are related to the study of son, या घर की जो चीजें हैं उसको लेके। जैसे जनरली ये होता है कि घर में जो लेडी होती है वो बहुत ज्यादा वरीड होती है, मेल्स जो होते हैं वो थोड़ा सा उसको लाइटली लेते हैं। तो हमारे घर में ये उल्टा था। तो धीरे धीरे करके ये है ना एक तरह का प्रेशर बनने लगा मेरे घर में कि सब लोग बोलने लगे आप एक्स्ट्रा हमारे ऊपर थोड़ा सा ये करते हो, रूल्स एंड गाइडलाइंस और सारी चीजें लगाते हो और ज्यादा चिंता करते थे। तो मैं इस चीज को समझना चाहता था व्हाई आई एम लाइक दिस, क्योंकि बाकी मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो इस तरीके से नहीं होते हैं। तो एक मेरा सेशन हुआ एंड इन वन ऑफ द सेशन आई सॉ दैट कि मैं एक विलेज का एक पर्सन हूँ जिसका घर है ना खेत के अंदर था, और थोड़ी डर्टी सी एक धोती पहनी थी व्हाइट कलर की, और व्हाइट कलर की मैंने एक बनियान जैसी पहनी हुई। एंड आई वाज लाइक आई थिंक 45 और 44 इयर्स मैन। मुझे अच्छी तरह याद है उसका फेस, हाइट, कलर, बॉडी टेक्सचर, सारी चीजें। और वहां पे एक मेरी वाइफ होती है एंड 2 सन्स। वन ऑफ द सन वाज आई थिंक अराउंड 8-9 इयर्स ओल्ड, और दूसरा जो बच्चा होता है वो उससे करीब 2 साल छोटा। और वहां पे वो जो वाइफ है मुझे बहुत गिल्ट से देख रही है। मैं वहां पे एक डिसीजन लेता हूँ कि दैट आई डोंट वांट टू टेक रिस्पांसिबिलिटी ऑफ दिस फैमिली लाइफ एंड आई वांट टू गो फॉर माय स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। आई वांट टू लिव free and freedom from this all the responsibilities and liabilities of wife and son. और मैं छोड़ के उनको चला गया। वो लोग दरवाजे के बाहर खड़े होकर देख रहे हैं, वाइफ और बच्चे, बहुत गिल्ट से, बहुत गुस्से में। और मैं वहां से चला जाता हूँ और फिर मैं एक रिवर के उस पार चला गया। देन थेरेपिस्ट आस्क्ड मी कि कितना टाइम हो रहा है। आई सेड इट्स अराउंड 7 o'clock इन द इवनिंग, अंधेरा होने लगा। सो ही सेड डोंट यू वांट टू गो बैक टू होम? सो आई सेड नो, आई डोंट वांट टू गो बैक टू होम। अभी मैं अपना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करूंगा और मैं लौट के घर नहीं जाऊंगा। थेरेपिस्ट मुझसे बहुत बोला कि आप देखो कि आगे क्या होता है, बट फाइनली आई सेड नो, आई डोंट वांट टू गो बैक। इस पेड़ के नीचे मैं यहाँ बैठा हूँ, अब आगे डिसाइड करेंगे क्या करना है। फिर सेशन के बाद आई ट्राई टू कनेक्टेड दिस ऑल द डॉट्स, और फिर ये चीज निकल के आई कि अभी जो ये एक्स्ट्रा क्यूरियस हूँ मैं और एक्स्ट्रा वरीड हूँ अपनी फैमिली के लिए, आई थिंक दिस इज अ लर्निंग फ्रॉम पास्ट लाइफ कि मैंने वहां पे जो अपना रोल कंप्लीट नहीं किया, व्हिच वाज माय रिस्पांसिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ वाइफ एंड चिल्ड्रन एंड ऑल, लेकिन मुझे सेल्फ की थी कि मुझे अपना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना है, और मैं उनकी रिस्पांसिबिलिटी नहीं ली और छोड़ के चला गया। शायद ये लर्निंग उस लाइफ से है कि यहाँ पे मुझे लगता है कि पर्पस ऑफ दिस लाइफ इज टेकिंग केयर ऑफ द एंटायर फैमिली। Purpose of this life, correct Anil, so मुझे लग रहा है the purpose of this life is doing spiritual growth while in the family. अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ करना है पर फैमिली के साथ रहकर करना है। और कितना सुंदर है कि ये वाइफ इज आल्सो इनटू रेकी। सो वाइफ ने भी डिसाइड किया कि भाई अब मुझे भी ऐसा कुछ काम करना है जो मेरा हस्बैंड विल नॉट गो अवे, ही विल आल्सो स्टे विथ मी। मैं भी स्पिरिचुअल काम करूंगी, मेरे हस्बैंड भी स्पिरिचुअल काम करेंगे। एंड सो आफ्टर दिस हैज देयर बीन सम चेंज अनिल? क्योंकि sometimes what happens is if wife is not understanding, then there can be a lot of conflict. Or if it happens in some in houses as well, where husband also don't agree to this when the wife is doing occult. So I think y'all are, there must be some past connection that you'll have come back together. Absolutely. Right, Ma? Very interesting. Very interesting. Yeah, very interesting. And the other thing I want to say is that what Anil spoke about being a boat. So most people feel a little odd कि boat कैसे हो सकते हैं हम लोग. Right. I wanted to ask you here, Ma. Yes. How does a person feel the body in the boat? Like a boat is a non-living thing for us, at least. Like if we I think we can ask Anil how did he feel as a boat. Anil कुछ बताओ. मैं सेशन में बहुत ये समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या मैं बोट चलाने वाला हूँ या मैं बोट में बैठा हुआ कोई पैसेंजर हूँ। लेकिन फाइनली बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करने में मुझे समझ में आया कि नाइदर आई एम अ पैसेंजर नॉर ड्राइवर, आई एम अ बोट एंड आई एम अ बोट। तो वो कॉन्शियसनेस में वो बोट ही मैं हूँ, वही मेरी कॉन्शियसनेस है। मैं नदी के उस साइड जाता हूँ, इस साइड आता हूँ, यही मेरा ड्यूटी है। शाम को वहाँ बांध देते हैं,
सुबह वो बंदा उस साइड ले जाता है, इस साइड ले जाता है और बस वो पैसेंजर को इधर उधर छोड़ना है. But did you feel restricted in the boat, or you were okay? I think I was very attached with the boat. That's the reason that I did not want to leave the boat anymore. Now that is so interesting, Irmila. Yeah, जिस yeah. तरह से हम एक देह, एक बॉडी के साथ अटैच्ड होते हैं, similarly the consciousness can be attached to anything which it seems to have taken as a form. It's basically a form, right? So this body is Yeah. also a form. Similarly, a boat is also a form. So the consciousness can definitely get attached to a boat for some time. It may not get attached to it for a very long period of time, but for a short period of time, it may just get attached because maybe it wants to rest with the boat, with the object of the boat. Or it is possible Oh. that his consciousness may have lived a life as a boatman before. And now the Okay, boatman is attached to the boat, right? To the Because that boat, is yeah. important. तो इसलिए कई बार ऐसे होता है कि जब हम, when we are doing some job, right? Like a boatman, Yeah. तो हम उस ऑब्जेक्ट से अटैच्ड हो जाते हैं. मृत्यु के पश्चात हम शायद उस बोट के साथ अटैच्ड हो जाते हैं. दैट इज व्हाई इसको थॉट आया अनिल को कि am I a He's a boatman? Yes, yes. So ये हो सकता है. It is possible, yeah. But we have Must be seen. he is a boatman, and yeah, as you said, attached to the boat so Yes. much that he started, feeling that he's a boat in the Yeah, end. it is Right. possible that the consciousness can have that attachment, We have So, seen Ma, so we many can people. have attachments to anything. That means Yes. tomorrow if I'm attached to a game or to my music or something like that. I don't know that, but yeah, you can be attached to some object of which is giving you some return, Okay. right? So the boatman is giving him returns. It is like his Return, sense of yeah. livelihood. Yeah, I mean, just Okay. because like we all have phones, that does not mean that we are all going to get attached to our phones, right? To the phone. Yeah. It's not yeah, like that. Yes, It's I very understand. different. Okay. Yeah. Yeah. So Anil, Yeah. very interesting. तो तुम्हें पता चल गया कि इस लाइफ में तुम्हें क्या क्या करना है और तुम कर ये रहे हो. बहुत इम्पोर्टेंट था मैम मेरे लिए कि ये मुझे ये पता जब चला कि ये मेरा लाइफ का पर्पस क्या है, which is the biggest question for most of the question, that why I got birth here, what is the purpose of my life. Correct. तो मेरा ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि पर्पस ऑफ दिस लाइफ इज स्पिरिचुअल जर्नी along with taking care of your family. You can't leave them alone and go for your personal development only. करेक्ट. तो अब तुमने काफी केसेस किए हैं अनिल, 50-55 केसेस किए हैं. उसमें से कुछ बताओ इंटरेस्टिंग केसेस जो तुमने किए, which actually made you a better therapist. Yes. तो जो केसेस होते हैं मैम उसमें मैंने देखा है कि मुझे सबसे ज्यादा जो अट्रैक्ट करते हैं केस, वो मोस्ट ऑफ द टाइम दिस केसेस व्हिच आर रिलेटेड विद द फॉरेन एनर्जी और द एक्सटर्नल एनर्जी ओनली. Okay. ये मुझे बहुत एक मेरा अंदर अलग एक्साइटमेंट क्रिएट होता है अगर मुझे कभी भी ये इस तरह का प्रॉब्लम सामने आता है, ऐसा कोई स्टेटमेंट देता है कि यहाँ पे इस तरह से हम फील करते हैं. आई आस्क कपल ऑफ क्वेश्चंस एंड व्हेन दे आंसर, और आंसर से निकलता है कि कोई सोल का इसके साथ कोई अटैचमेंट है. तो वो मेरे अंदर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट करता है टू डू समथिंग फॉर देम. तो एक केस मुझे याद है व्हिच आई हैव डन रिसेंटली. इसमें एक फैमिली है. फैमिली में आई थिंक दे आर मैरिड कपल लास्ट 18-19 इयर्स. बड़े बड़े बच्चे हैं उनके, 10th में 9th में बच्चे हैं उनके. और वो इशू यहाँ पे ये लेके आए थे, बेसिकली उनके हस्बैंड यहाँ पे आए थे एंड उनकी वाइफ को भी वो साथ में लिया. तो प्रॉब्लम उनका ये था कि उनकी वाइफ को कभी भी किसी बात पे कुछ गुस्सा आता था उनको ऑल ऑफ सडन. उसने बताई 4-5 एग्जाम्पल. तो गुस्सा जब आता था तो शी बिकम वेरी एब्यूसिव. उस बहुत गलत लैंग्वेज यूज करती थी. सम टाइम कुछ उसके ऊपर नाइफ निकाल लेगी, कभी कोई शार्प डिवाइसेस निकाल लेगी मारने के लिए. और तो ये प्रॉब्लम इस लेवल तक चला गया था कि उन लोगों ने जब साइकेट्रिस्ट को दिखा दिया, वहां से कोई सॉल्यूशन नहीं मिला. देन दे वेंट टू तांत्रिक एंड मंदिर, पूजा पाठ, ज्योतिष, सब कुछ कर लिया. इस लिमिट तक ये आ गया था कि दैट गाय सेड कि हम ये लास्ट ऑप्शन है, हम आपके पास आए हैं. एंड आफ्टर दैट वी हैड डिसाइडेड टू टेक डिवोर्स. और हो सकता है इस लेडी को हम लोग फिर जो है मेंटल हॉस्पिटल में डाल देंगे, बिकॉज कुछ सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है. कंटिन्यूअसली वी आर सफरिंग फ्रॉम लास्ट 7-8 इयर्स. अरे बाप रे. और अब बच्चों का लाइफ भी ट्रबल में आ गया.
सो सिंपली जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हुए थे वहाँ पे एक दो एग्जाम्पल थे आपने जो फॉर एनर्जी वाले करे थे, तो वहां से मेरा लर्निंग था। तो मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैं सामने बैठ के इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी का कोई टूल लगाऊंगा। बट वो लेडी को सामने बिठाया सोफे पे एंड आई जस्ट आस्क हर टू क्लोज आईज एंड स्टार्टेड टॉकिंग सिंपली। तो जिस तरीके से वो एक्सप्रेशन दे रही थी बीच में बात करते करते, मुझे क्लिक किया कि देयर आर चांसेस दैट समवन इज देयर इनसाइड हु इज नॉट दिस लेडी, इस तरीके से बिहेव करती है। सो सिंपली आई आस्क्ड हर अ क्वेश्चन, if there is anyone else is there in this body, so I want to talk to him or her, please come front and इस लेडी को आप पीछे जाने दो। तो जिस तरीके से उसने बात करना फिर शुरू किया ना, ऑल ऑफ सडन उसके आवाज चेंज हो गई, उसकी वॉइस हैज बिकम लाइक अ 65-70 इयर्स ओल्ड लेडी, और एक्सप्रेशन भी ऐसे देने लगी कि उसको आईज से बहुत कम दिखता है, आईज ब्लिंक करने लगी, फेस भी अलग अलग एक्सप्रेशन दे रही थी, हाथों से अलग एक्सप्रेशन देने लगी। तो आई रियलाइज कि समवन इज देयर। देन आई आस्क्ड नेम कि आप कौन हो, क्या हो। तो उसने बात करना शुरू किया कि मैं इसकी मदर इन लॉ और मैं 8 साल से इसके साथ में यहाँ पे रह रही हूँ। तो उससे पूछा कि व्हाई यू आर देयर विद हर। तो बोला कि मेरा जो बेटा है, आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद दिस माय सन, और ये मेरे जो मेरी डॉटर इन लॉ इसके साथ अच्छा ट्रीट नहीं करता है, तो मैं इसको प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, इसलिए मैं इसके साथ में रहती हूँ हमेशा। तो फिर जब पीछे उसके एग्जाम्पल लिए तो कोरिलेट करा, समझ में आया कि इशू वहां से शुरू हुआ कि दे आर हस्बैंड एंड वाइफ। तो वो जब भी वो उसका हस्बैंड उसका वाइफ के क्लोज जाता था तो उसकी माँ की पर्सनैलिटी बाहर आ जाती थी, और सिंस मदर वाज एंग्री टू दिस सन, उसको एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करना और मारा पीटी शुरू कर देती। तो मुझे इससे परेशान था 7-8 सालों से कि ये मेरा वाइफ है, जब भी मैं कुछ बात करता हूँ इससे क्लोज जाता हूँ तो ये स्टार्ट बिहेविंग लाइक दिस व्हिच इज वेरी एबनॉर्मल। सारी दवाइयाँ खिला दी, सारी चीजें कर दी। तो फिर उसने बताया कि मैं ये जो बंदा है इसकी मैं माँ हूँ और इसको अपनी बहू को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके साथ में 8 सालों से रह रही हूँ। सो फिर दैट वाज नॉट आई नॉट टेकन इन ट्रांस, और उसको इस तरीके से कुछ भी मैंने लंबा सेशन नहीं किया। इट टुक्स ऑलमोस्ट not more than 40-45 minutes to complete the entire session. फिर उससे पूछा कि अब इनका फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, नाउ आई वांट यू टू लीव दिस बॉडी। इस तरह से तो ये इनका फैमिली लाइफ पूरी टूट जाएगी, और मुझे नहीं लगता कि आप भी अपने बेटे के लिए ऐसा सोचते होगे। तो शी सेड कि मैं अपनी बात बताना चाहती थी कि एक तो आई एम नॉट हैप्पी विथ माय सन, ये मेरे एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट नहीं करता है, मेरी कुछ नीड है जो इसने पूरी नहीं करी। तो वो वहीं पे बैठे थे उनके सन, मैंने उनसे पूछा कि व्हाट डू यू फील अबाउट योर मदर। तो कुछ बहुत अच्छे एक्सप्रेशन उनके नहीं थे। तो फिर उनसे पूछा कि ये इनका जब डेथ हुई थी उस टाइम में जो रिचुअल होते हैं हिंदुओं के, सारे रिचुअल आपने करे थे? तो बोला कि नहीं, मैं उनके पिंडदान वगैरह के लिए गया, कहीं जा रहा था तो कुछ ट्रेन लेट हो गई या छूट गया तो फिर मैंने नहीं करा, और वो जो रिचुअल बात के होते हैं वो नहीं करे। तो उसकी मदर ने बोला कि मैं आई नीड सम क्लॉथ्स, आई नीड सम फूड, ये मुझे खाना है, मुझे 2 साड़ी दे दो इस टाइप की और पूरे कपड़े दे दो, देन आई लीव दिस बॉडी। ये मुझे मिला नहीं है। तो 8 साल से ये इशू चल रहा था, और 8 साल पहले ही उसकी मदर वहाँ पे एक्सपायर हुई। तो वो बंदे से प्रॉमिस कराया सामने बिठा के, तो वो बोली कि ठीक है, ये प्रॉमिस कर रहा है बैठ के, एंड आई होप दैट कि ये सब चीजें कर देगा, बिकॉज आई नो माई सन कि ये इसका किस तरीके इसका बिहेवियर है। और शी सेड ठीक है, अब मैं इसको छोड़ के यहाँ से चले जाती हूँ। तो आई सेड हिम इमीडिएटली यू प्लीज लीव, और जो आपका रिक्वायरमेंट है, जो भी नीड है, उसका डेट बता दो, वो जो भी वे है उस वे से हम कर देंगे। तो वहां पे उसने बोला, प्रॉमिस किया, ठीक है आई एम गोइंग। फिर वो लेडी फिर वापस बैठ गई। देन अगेन इसके एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब थी, कभी ऐसे शोल्डर्स ऊपर नीचे कर रही है, कभी ऐसी नेक आगे पीछे कर रही है। तो फिर मुझे डाउट हुआ, अगेन आई आस्क्ड द क्वेश्चन इफ समवन एल्स इज देयर इन दिस बॉडी, तो मैं उससे बात करना चाहता हूँ। फिर वो बोली, अपना नाम भी बताया उसने, आई क्लियरली रिमेम्बर द नेम। ही सेड माय नेम इज रामलाल। उसको पता है आपकी एज कितनी है? बोला आई एम 65-67 इयर्स ओल्ड। पूछा कि आप इनको कैसे जानते हो और क्या रिलेशन है और क्यों इनके साथ? तो बोला मेरा इनसे कोई रिलेशन नहीं है, मैं इनको जानता भी नहीं हूँ। ये लास्ट ईयर ये ना नवरात्रि के टाइम में
कहीं पे खाना खा के, खाना लेके या देने के लिए जा रही थी। उसमें बहुत सारी स्वीट्स और वो सारी चीजें थी और मुझे खाने का बहुत शौक है, तो मैं इसके साथ में आ गया। एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड आई एम लिविंग विथ हर, लेकिन मैं इसको कुछ परेशानी नहीं देता हूँ, कुछ दिक्कत नहीं देता हूँ, और मैं तो सिर्फ घर में रहता हूँ वहाँ पे, और जब मुझे ज़रूरत लगती है खाने की तो मैं वो चीज़ें खा लेता हूँ इस तरीके से। तो ही वॉज वेरी स्कैर्ड, बहुत डर गया, बोला नहीं नहीं मेरा कोई मिस्टेक नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है, ना मैंने उसको कोई ट्रबल दिया है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू टेल मी। तो मैंने बोला कि ये दिस इज नॉट द वे, इनकी लाइफ ट्रबल में है आपके कारण, यू प्लीज गो। सो वो तो बिल्कुल बहुत ही वॉज वेरी जेंटल काइंड ऑफ गाइस, बोले मैं सिर्फ खाने के लिए आया था और मैं आई एम गोइंग बैक। वो वाली चीज हुई, उसके बाद फिर वो नॉर्मल हुई लेडी। देन उसको फिर मैंने एक डीपनर दिया, फिर उसको रिलैक्सेशन दिया, फिर उसमें कुछ अफर्मेशंस डाले फॉर पीस एंड जॉय एंड लव एंड ऑल। फिर उस सेशन से बाहर आई, अगेन आई आस्क्ड हर टू मीट आफ्टर 3 days। तो बोली कि थोड़ा सा बॉडी में वीकनेस सी लग रही है, बहुत डल सा लग रहा है। उसके बाद फिर 2-3 बार मैंने उससे मीटिंग करी आफ्टर 1 month 45 days। तो इस बात को आई थिंक ऑलमोस्ट 8-9 months हो गए हैं। now their family is settled, the issue is being settled। अभी उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने उनके हस्बैंड से भी फोन पे पर्सनली बात करी जब ही वॉज इन ऑफिस, कि आप अकेले में मुझे बताओ किस तरह के इश्यूज अभी है क्या, या किस तरीके से बिहेव कर रही है। ही सेड वो बिल्कुल चेंज हो गई है, अब इससे चुपचाप रहती है और बहुत ही नॉर्मल वैसी लगने लगी है जैसे मुझे 8-10 साल पहले ये थी। तो पिछले 8-10 सालों से बहुत ट्रबल क्रिएट कर रही थी और मारा पीटी घर में रोज का काम था, डेली सारे बर्तन तोड़ना, नाइफ निकाल लेना, बैट उठा लेना मारने के लिए। तो ये इशू रिजॉल्व हुआ। आई वॉज थोड़ा सा मैं डाउट में भी था कि मैंने फर्स्ट टाइम ये करा है, पता नहीं ये कैसा होने वाला है, बट रिजल्ट्स आर एक्सेलेंट। अभी वो लोग बहुत खुश हैं और इवन दे डोंट वांट टू डिस्कस दिस सब्जेक्ट अगेन। तो बहुत पेनफुल है, हमको ये बात भी नहीं करना है। वी आर हैप्पी एंड वी आर ओके, परफेक्टली फाइन। वेरी इंटरेस्टिंग निर्मला, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि ऑब्वियसली देयर वाज नो पास्ट लाइफ रिग्रेशन इन्वॉल्व्ड हियर। ये क्या था कि अनिल ने उस व्यक्ति को सामने बिठाया, राइट अनिल, और आपने बोला आंख बंद करो, एंड देन यू आस्क्ड अ क्वेश्चन कि अगर कोई है, कोई और है इस बॉडी के अंदर अपार्ट फ्रॉम दिस पर्सन, यू कैन स्पीक टू मी। सो समटाइम्स निर्मला क्या होता है, देयर आर स्पिरिट्स who get attached and they only want to voice themselves, they want to speak up. Okay. Is this possible that there was this entity kind of attachment with this woman and this happened and Anil obviously resolved the problem? It is also possible Anil कि 8 साल पहले जब इनकी सास की मृत्यु हुई होगी, and we already know that this lady was harassed by her husband. Yes. So sometimes ये हो सकता है कि the lady herself would have wanted some protection. And so she would have said that if my सास is with me, अगर मेरी सास मेरे साथ है तो हो सकता है कि ये आदमी मुझे परेशान न करे. So it is also possible that the mind gets fragmented. Maybe when her mother-in-law was alive, maybe she was like a protection for her. Correct. So yeah, so maybe this whole so it is also possible that the mind of the woman got fragmented at that time, wanting a protector. And started possibly behaving like as if there is a protector inside her. So it is very difficult, but Anil ने बहुत ही बढ़िया किया Anil. Within 45 minutes तुमने resolve कर लिया issue, and you also had information about somebody else who was there, like a fragment that was attached to her. You gave a name, and I'm just happy that the woman is okay now. That's more important. Safe and sound. So whether it is a real spirit attachment or a fragmented mind that creates a personality. Yeah, it's very difficult to say that actually. But the key is that the person has got okay and the problem is resolved. So Anil, congratulations my dear. Thank you. Also Anil ने जैसे कहा कि उसकी interest इन सब बातों में है.
ओकल्ट में और इन सब चीजों में, तो शायद अनिल इसलिए शायद ऐसे केसेस तुम्हारे पास बहुत आते होंगे। बहुत आते या होंगे। हाँ, ऐसे ही केस ज्यादा आते हैं मैम, कुछ इस तरह के। और मतलब पता नहीं क्यों मैं अपने इंट्रोडक्शन में भी किसी से मिलता हूँ तो मैं ये ऑल ऑफ सडन बोल देता हूँ कि अगर इस तरह का कोई आपके नॉलेज में ऐसा कोई प्रॉब्लम हो किसी की लाइफ में, इसका कोई सॉल्यूशन ना मिल रहा हो, तो आप मुझे उसके उस बंदे को मेरे पास ले आना। तो आई एम बहुत वेरी बढ़िया। कॉन्फिडेंट, पता नहीं ये बात कहाँ से निकलती है। मैं बोलता हूँ जब आपको कोई सॉल्यूशन ना मिल रहा हो, डॉक्टर से इलाज ना हो रहा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं हो, तब आप मेरे पास लाना, उसको मैं उसके ऊपर काम करूँगा। तो हो तो पता सकता नहीं, है मुझे नहीं अनिल, मालूम क्यों ऐसा निकलता है। तेरा जो पास्ट लाइफ थी एज अ बैनियन ट्री, या उसके विद दैट बाद लाइट। तुम अपने आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे गए, वेर यू वर लोनली, यू वर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। हो सकता है जब आप बहुत ज्यादा नेचर के साथ रहते हैं ना, तो नेचर स्पिरिट्स जो होते हैं वो आपके भीतर इन्फ्लुएंस करना शुरू करते हैं, बिकॉज नेचर हैज देयर ओन स्पिरिट्स, राइट? सो इट इज पॉसिबल दैट्स द रीजन यू आर गुड एट समथिंग लाइक दिस। और कोई एक्सपीरियंस, पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस किसी क्लाइंट का शेयर करो। एक एक्सपीरियंस है मैम रिसेंट। इसमें क्या हुआ कि एक 31 ईयर्स ओल्ड गाय इज देयर, इंदौर के पास महू करके जगह है, वहां पे है वो। रिसेंट केस है, अभी मेरे ख्याल से नॉट मोर देन 1.5 months। तो इसका क्या हुआ, इसकी 31 ईयर्स की एज है, कोई बिजनेस नहीं करता है, जॉब नहीं करता है, और यहाँ पे सिचुएशन आ गई अभी कि वो वाइफ के गहने वहने बेच बाच के अभी वो खा रहा है। उसकी कजिन ने मुझे फोन लगाया था कि कैन यू डू समथिंग फॉर दिस गाय। तो उससे मैंने बात करी तो ही सेड कि मेरा लाइफ का ओनली पर्पस वाज टू जॉइन आर्मी एंड आई ट्राइड अ लॉट, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और लाइफ में इसके अलावा कुछ है नहीं। तो कोई बिजनेस नहीं करता है, जॉब नहीं करता है, बस उसको आर्मी का ही सपना दिखता है। उसकी कॉलर टोन भी आर्मी की डली हुई है मोबाइल पे। अच्छा। तो उसका मैंने एक सेशन किया। सेशन में फर्स्ट टाइम तो ही कुड नॉट कनेक्ट। मॉर्निंग में मैंने सेशन रखा था 6 o'clock, फिर इवनिंग में मैंने उसका सेशन किया। तो इवनिंग में मतलब वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, ट्रांस में जाता ही नहीं था वो। 2 बार करने के बाद ऑलमोस्ट मेरा करीब करीब 1 घंटा उसमें चला गया। और 1 घंटे के बाद फिर मैंने उसको बोला कि ये हाउ आर यू फीलिंग। ही सेड एवरीथिंग इज ओके, लेकिन मेरा है ना राइट हैंड में बहुत दर्द हो रहा है। तो मेरे को एकदम क्लिक कर गया। मैंने आपके एक बार सेशन में देखा था जब प्रोग्राम आपने कराया था, तो मैं उसके पेन पे आया। मैंने कहा यू जस्ट फोकस ऑन योर पेन ऑन राइट हैंड एंड लेट्स गो अहेड। तो अचानक उसने बोलना चालू कर दिया कि मेरा हाथ जो है टूट गया है और डैमेज है पूरा और बहुत पेन हो रहा है। फिर उसने बताया, स्टोरी बोलना शुरू की। तो आई थिंक कंटिन्यूअसली फॉर 2 hours ही सेड द एंटायर स्टोरी। ही सेड 1935 साल चल रहा है अभी, और सोवियत संघ और इंग्लैंड का लड़ाई हो रही है, विच इज सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और वो सोवियत संघ का सोल्जर है। तो उसने बताया कि बॉम्ब डाला है और उसकी लाइट इतनी तेज थी कि मैं आंख नहीं खोल पा रहा हूँ, शायद मेरी आंखें चली गई है, और कानों से भी शायद मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, इतना तेज उसका आवाज था। और मेरा राइट हैंड पूरा डैमेज हो गया और राइट वाला लैंड, और मैं एक बंकर के अंदर छुपा हुआ हूँ, और 4-5 घंटे निकल गए, कोई लेने भी नहीं हमको आया है, और बम्बार्डिंग कंटिन्यूअसली चालू है। तो बहुत पेन उसको हुआ। ही सेड मुझे पानी पिलाओ और मैं मरने वाला हूँ, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। पूरे टाइम वो बहुत रोता रहा, बहुत चिल्लाता रहा। फिर सेशन को कंटिन्यू करा, तो वहां से फिर बोला कि मॉर्निंग में मेरे आर्मी वाले आए, मुझे फिर हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में आई सेड कि क्या बातें कर रहे हैं लोग, कौन सा हॉस्पिटल है। बोला लोग बातें तो कर रहे हैं, उनके लिप्स हिल रहे हैं, लेकिन मुझे सुना ही नहीं आ रहा वो लोग क्या बोल रहे हैं। मुझे सुना ही नहीं आता, सुना ही नहीं आता। पूरी टाइम बोलता रहा कि पता नहीं, मेरा वाइफ इज देयर, शी इज टेलिंग समथिंग बट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट शी वांट टू टेल। तो वाइफ का नाम बताया उसने, बेला वाइफ का नाम है मेरे। और इसका भी कुछ अच्छा नाम बताया, मैंने डायरी में नोट किया, नाम उसका मैं भूल गया। उसने डेट के साथ बताया कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, मेरे यहाँ पे सारे जितने वॉर में लोग जख्मी हुए थे वो सारे लोग यहाँ पे हैं। फिर आर्मी ने उसको रिटायरमेंट दे दिया। फिर उसको पैरालिसिस हुआ राइट साइड बॉडी में पूरा, और उसके 8 ईयर्स तक उसने सर्वाइव किया, और 8 ईयर्स के बाद फिर वो उसकी डेथ हो गई। सो आई सेड कि आपका डेथ अभी हो रही है, तो व्हाट इज द लास्ट थॉट, व्हाट इज द लर्निंग ऑफ दिस लाइफ। ही सेड नथिंग इज बेटर देन बीइंग अ ह्यूमन। एक सोल्जर होने से ज्यादा जिंदगी में कुछ नहीं होता। अगर सबसे बड़ा कुछ कर सकते हो इंसान हो तो देश की रक्षा कर सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सो मैं और आई वांटेड टू कंटिन्यू माय सर्विसेज टू माय कंट्री, लेकिन अभी मैं मर रहा हूँ। और मेरा लर्निंग यही है कि एक सिपाही होने के अलावा देश का,
इससे बड़ी जिम्मेदारी और किसी इंसान की नहीं हो सकती. So this learning he drawn from the past life कि आर्मी जो है वही सब कुछ है. अब इसके कारण वही जो उसके अंदर थॉट है आर्मी सब कुछ है, पूरी लाइफ स्पॉइल हो गई. ना जॉब कर रहा है, आर्मी में सिलेक्शन उसका हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ सम सिस्टम और सर्कमस्टेंसेस. नो कोई बिजनेस करता है ना जॉब करता है, बस आर्मी आर्मी पूरे टाइम. इतना फ्रस्ट्रेशन लेवल उसका बढ़ गया मैम. जब मैंने फर्स्ट टाइम उससे बात करी ना तो करीब 40 मिनट बात हुई होगी एंड 40 मिनट में वो ही वॉज कंटिन्यूसली क्राइम. 6.5 फीट का बंदा है, अच्छा खासा तगड़ा, 31 साल का, रोए जा रहा है रोए जा रहा है रोए जा रहा है, बोल रहा है कुछ पर्पस नहीं है लाइफ का, मेरा आर्मी में सिलेक्शन नहीं हुआ. जब ये सेशन उसका हुआ उसके बाद बाहर आने के बाद ये उसको तो कुछ याद रहा नहीं, बहुत ही माइनर उसको कुछ चीजें याद थी, डीप ट्रांस में था. आफ्टर द सेशन आई टेल हिम द एंटायर स्टोरी. फिर उसको कुछ ग्लिम्स मिले वहां पे. फिर उसको ये रियलाइज हुआ कि जिस तरीके से मैं अपनी लाइफ ड्राइव कर रहा हूँ, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. दैट वाज अ लाइफ व्हेन आई वाज इन आर्मी. और अब कुछ रोल चेंज हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हुई है. तो इसका गुड पार्ट ये है कि उसके बाद फिर उसने 2 वीक बाद फिर वो इंदौर गया, किसी के साथ पार्टनरशिप करी है, अभी कोई बिजनेस उसने स्टार्ट करा हुआ है. परसों ही मैंने उसे फोन लगाया था तो बोला सर मैं ड्राइव कर रहा हूँ, इंदौर से कुछ सामान लेके आना है. तो अभी उसकी वाइफ इज क्वाइट हैप्पी, ही इज आल्सो क्वाइट हैप्पी. अब उसने कुछ बिजनेस शुरू किया है, अब उनकी फैमिली सेटल होने लगी है. Wow, Anil, wonderful. So nice. Very so nice. so nice, very nice. So what you used is what we call a somatic bridge technique. जब Yes. तुमने पेन के ऊपर फोकस किया, that pain itself, because that memory was in that hand. Yes. Okay, और वो memory अपने आप फिर बाहर आई है. Wonderful, Anil. What a lovely session this is. So Anil, I'm so happy. I think हमारी बात काफी टाइम बाद हो रही है. Yes, After ma'am. the training, actually, I haven't chatted with you, so I'm so happy that you're doing so well. So Anil, अब तेरी life में जैसे, you know, now you've become a past life therapist, many other things you're doing, तेरा interest open हुआ है. आगे कैसे देखते हो अपने आप को? आगे मैम मैं इसको ऐसा देखता हूँ कि है ना, मैं इसको और एक्सप्लोर करना चाहता हूँ इन सम मोर वेरी फाइन टेक्निक्स, जहाँ पे अगर मुझे 1.5 आवर का टाइम किसी का सेशन लेने के लिए लग जाता है तो आई वांट टू बिकम अ काइंड ऑफ थेरेपिस्ट कि आप आधे पौन घंटे के अंदर ही वो चीज कर पाओ. सम टाइम सिंस वी आर नॉट वेरी एक्सपर्ट, कुछ ऐसे आलतू फालतू क्वेश्चन भी हम लोग कर लेते हैं जो बाद में समझ में आता है ये तो क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं थी. तो रिफाइन करना है मैम अपने आप को, रिफाइन करना है और ऐसे केसेस के ऊपर काम करना है जिन लोगों का सॉल्यूशन अब कहीं पे भी नहीं मिलता है. कई बार इस लेवल तक लोग आ गए हैं कि डिवोर्स हो रहे हैं या डिप्रेशन में चले गए या सुसाइडल टेंडेंसी हो रही है एंड वो दिस इनोसेंट पीपल, उनको इतना भी नहीं पता रहता है कि इसका कुछ सॉल्यूशन है. सम काइंड ऑफ थेरेपीज आर देयर, थेरेपिस्ट आर देयर जो उनको हेल्प कर सकते हैं कि जो पैटर्न बन गए हैं पास्ट लाइफ से उसके कारण जो ट्रबल हो रहा है. तो अवेयरनेस एक तो थोड़ा करना है, जिन लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है कुछ सॉल्यूशन है, और अपने आप को रिफाइन करना है सो दैट वी कैन गिव सॉल्यूशन. ऐसा ना हो कि कोई आए और हम हेल्प नहीं कर पाए उसकी. Very nice, Anil. That Refinement. is why we have Purnamada series to back you. Yes. So next time ऐसे कुछ हो, people don't believe, तो ये try कर लो, यहाँ भी Purnamada देख लेना. Yes, absolutely. और Anil, very nice. You are saying refinement. ये बहुत important है. और refinement कैसे आएगा? जितने ज़्यादा cases देखते रहोगे ना, तो वैसे वैसे तुम्हारी रिफाइनमेंट बढ़ती जाएगी. क्वेश्चंस, आंसर्स, कैसे मुझे क्वेश्चन करना है, किस तरह डिफरेंट केसेस करना बहुत जरूरी होता है. देन यू बिकम एन एक्सपर्ट एंड यू आर गोइंग टू बिकम एन एक्सपर्ट, बिकॉज आई कैन सी तेरे अंदर एक डिवोशन सा मैं देख रही हूँ. इसे बहुत अच्छा लगने लगा है तुम्हें खुद का काम. एक चीज मैं करता हूँ मैम, मैं आपकी विदाउट योर परमिशन, कि जब भी कोई सोल वाला काम होता है ना तो कभी कभी मैं डर भी जाता हूँ. सो देन आई कॉल यू देयर विदाउट योर परमिशन and request you to sit beside me. Confidence. Absolutely, I'm always there. There's nothing like that. You can always call me, and I'm really happy. है ना इर्मिला? अनिल ने बहुत interesting बातें बताई आज हम लोगों को. Yeah, the boat thing was like something else. I didn't realize this because I have never handled these kind of cases. This is the first time I'm listening to something. Banyan tree, animals, we've always seen these things.
you know, a Yes. boat we've not seen. Yeah. So Anil, now your wife is happy, your children are happy, you are happy, everything is good. So अपने हमारे जो लोग पूर्णमदा को इतना ज्यादा पसंद करते हैं, उनके लिए तुम अगर कोई मैसेज देना चाहते हो? मैसेज में मैं एक ही देना चाहता हूँ कि कई बार ये होता है कि हम लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं इन सब सब्जेक्ट के ऊपर, बातों के ऊपर, साइंस के ऊपर, एंड नोइंगली अननोइंगली हम उसको अवॉइड करते हैं और लाइफ की प्रॉब्लम्स कंटिन्यू चलती रहती है. सो बेस्ट पार्ट इज कि अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं भी है, सो जस्ट गो अहेड एंड एक्सप्लोर. ऐसे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन जिनका सॉल्यूशन मेडिकल डॉक्टर के पास नहीं मिल पाता है, या हमको कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पूजा पाठ से, ज्योतिष से सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं कुछ करके. कई बार हम लोग उसको तंत्र मंत्र से करने की कोशिश करते हैं. सो ये दिस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम जिनके सॉल्यूशन कभी नहीं मिलते. मैंने कुछ केसेस देखे जहाँ पे लोग डीप डिप्रेशन में चले गए, सुसाइड कर लिया, इस तरह की बातें हुई. रीजन वाज ओनली कि उनका पीछे की लाइफ से जो पैटर्न आ रहे थे और इस लाइफ में जो एबनॉर्मलिटी क्रिएट हो रही, उसके लिए उन्होंने कभी इस चीज को सोचा ही नहीं कि कोई थेरेपिस्ट हमारी हेल्प कर सके. तो अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है, कहीं से कोई फीडबैक, कोई को बहुत आपका इसके बारे में नॉलेज नहीं है, स्टिल अगर कहीं से कोई क्लू मिलता है, कोई सजेस्ट करता है, सो यू मस्ट गो. बस 1 घंटा भर इन्वेस्ट करने की बात होती है, which can change the entire life. Yeah. Very nice, There's no Anil. harm in investing in something like that. एक बार try करना is always. Absolutely, absolutely. So Anil, it was wonderful talking to you, my dear. And Thank Irmila, you. thank you so much. Thank you. So Thank you, everybody, Ma. Thank you. keep watching Thank you, Anil. Purnamada. Thank you, Irmala. Thank you, ma'am. मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना. मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना. मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना. मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना. मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना.